ratios of complementary angles. So let us start the session. तो पहले हम देख लेते हैं the meaning of complementary angles. So what are complementary angles? Two angles whose sum is 90 degree are called as complementary angles. Correct? Two angles whose sum is 90 degree are called as complementary angles. राइट उसके बाद हमने यहां पर एक ट्रायंगल कंसीडर किया है, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल B इज 90 डिग्री. सो इफ वी अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल, मतलब अगर आप ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहां पर मैं रीजन लिख देता हूं, एंगल सम property of triangle, which states that sum of all the angles of a triangle is 180 degree. Now in this case we know that angle B is 90 degree, तो मैं ऐसे लिख दूं, एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C is equal to 180 degree. This means angle A plus angle C is equal to 180 minus 90 and that is equal to 90 degree. तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एंगल A and angle C are complementary angles, right? Sum of these two angles is 90 degree. This means angle A and angle C are complementary angles, right? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल C is equal to 90 degree minus angle A, correct? Angle C can be written as 90 degree minus angle A. अब ये एंगल का साइन हटा देता हूं मैं, so this becomes C is equal to 90 minus A. सपोज इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1. यहां तक समझ में आ गया? एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके मुझे क्या मिल रहा है, एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट? तो यहां से मैं एंगल C को लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एंगल A, that is angle C is equal to 90 minus A. यहां तक क्लियर है? Now we'll find the trigonometric ratios of angle A. So if we find sin A, this will be equal to, sin के लिए फॉर्मूला क्या है, it is opposite side upon hypotenuse and this is equal to, अब एंगल A अगर आप लोगे तो एंगल A के लिए अपोजिट साइड इज BC and hypotenuse is AC, right? उसके बाद if you find cos of angle A, cos के लिए फॉर्मूला क्या है, it is adjacent side upon hypotenuse and this is equal to, अब एंगल A के लिए adjacent side is AB and hypotenuse is AC. Next, tan of angle A, tan A is opposite upon adjacent side, so this will be opposite side upon adjacent side and this is equal to, अब A के लिए अपोजिट साइड BC और एडजेसेंट साइड AB, राइट? नेक्स्ट, कॉट ऑफ एंगल A, सो कॉट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, अब कॉट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, रेसिप्रोकल ऑफ tan A एंड दिस इज इक्वल टू AB अपॉन BC, राइट? या फिर आप A by O से भी फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट इज sec A and this is equal to, sec A is the reciprocal of cos A, so this will be equal to 1 upon cos A and this is equal to AC upon AB, right? cos A is AB upon AC, तो sec A कितना हो जाएगा, AC upon AB, right? Last, cosec A is the reciprocal of sin A, so this will be equal to, sin A कितना है, it is BC upon AC, तो ये हो जाएगा AC upon BC, करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया है? सो वी हैव फाउंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A. अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C, बिकॉज A एंड C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, करेक्ट? तो साइन ऑफ एंगल C की जगह पर मैं ऐसे लिख दूं, 90 minus A, करेक्ट? दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस A मींस, अब ये एंगल C, दिस इज 90 माइनस A, करेक्ट? तो इसके लिए अपोजिट साइड कौन सी है, AB,
सो दिस विल बी ए बी, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. नेक्स्ट विल फाइंड cos of 90 minus a and this is equal to, अब इसके लिए एडजेसेंट साइड इज BC, तो फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज इक्वल टू BC अपॉन AC. नेक्स्ट इज tan of 90 minus a, फॉर्मूला इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंड दिस इज इक्वल टू 90 minus a के लिए अपोजिट साइड इज AB. So this will be AB upon adjacent side is BC, right? Next, cot of 90 minus A. So cot of 90 minus A is equal to 1 upon tan of 90 minus A, and this is equal to, cot is reciprocal of tan, तो ये हो जाएगा BC upon AB. Next, sec of 90 minus a, and this is equal to, it is reciprocal of cos of 90 minus a, so this becomes equal to, cos का reciprocal लेना है, so this will be AC upon BC, तो ये हो जाएगा AC upon BC. and finally cosec of 90 minus a will be equal to, cosec 90 minus a is nothing but reciprocal of sin 90 minus a, तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू AC अपॉन AB, तो यहां पे आ जाएगा AC अपॉन AB, करेक्ट. सो सपोज इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं पार्ट 1, और ये जो है इसको कंसीडर कर लेता हूं पार्ट 2, करेक्ट. तो दोनों में कुछ रिलेशनशिप मिल रहा है क्या, चेक करते हैं. तो अगर आप यहां पर देखोगे तो sin A is BC upon AC, एंड यहां पर cos of 90 minus A is BC upon AC. ये समझ में आ रहा है. So I can write sin A is equal to cos of 90 minus A, right? ये समझ में आ रहा है आपको. sin A भी BC upon AC है, cos 90 minus A भी BC upon AC है. So from this we can write sin A is equal to cos 90 minus A. Next, cos A is AB upon AC, and sin 90 minus A is also AB upon AC. So from this we can write cos A is equal to sin 90 minus A. यहाँ तक क्लियर है. cos A is AB upon AC, and sin 90 minus A is also AB upon AC. So therefore we can write cos A is equal to sin 90 minus A. Next, tan A is BC upon AB, and cot 90 minus A is also BC upon AB. So from this we can write tan A is equal to cot of 90 minus A, right? tan A is equal to cot 90 minus A, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे. नेक्स्ट, cot A is AB upon BC, and tan 90 minus A is also this AB upon BC. So therefore we can write cot A is equal to tan of 90 minus A, right? cot A is equal to tan of 90 minus A. यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट, sec A is AC upon AB, and cosec of 90 minus A is also AC upon AB, correct? So therefore we can write sec A is equal to cosec of 90 minus A. यहां तक क्लियर है. sec A is AC upon AB, so cosec of 90 minus A is also AC upon AB. So therefore we can write sec A is equal to cosec 90 minus A. And last, we can write cosec A is AC by BC, and sec 90 minus AC 90 minus A is also AC by BC. So therefore we can write sec 90 minus A is equal to cosec of A. समझ में आ गया है. तो यहां से हमने कुछ रिलेशनशिप्स डिराइव किए हैं. क्या रिलेशनशिप्स है? sin A is equal to cos of 90 minus A, उसके बाद cos A is equal to sin of 90 minus A. Next, tan A is equal to cot of 90 minus A.
Next, cot A is equal to tan of 90 minus A. Sec A is equal to cosec of 90 minus A. And last, cosec A is equal to sec of 90 minus A. अब ये सारे रिलेशनशिप्स हम एक जगह पर लिख लेते हैं, ठीक है? So therefore, from 1 and 2 we can write, पहला फॉर्मूला क्या है? Sin of A is equal to cos of 90 minus A. Next, cos of A is equal to sin of 90 minus A. Next, tan A is equal to cot of 90 minus A. Cot A is equal to tan of 90 minus A. Next, sec A is equal to cosec of 90 minus A. And last, cosec A is equal to sec of 90 minus A. समझ में आ गया है? So these are the formulas used for complementary angles. Means sin A is equal to cos 90 minus A, cos A is equal to sin 90 minus A, tan A is equal to cot 90 minus A, cot A is equal to tan 90 minus A, sec A is equal to cosec 90 minus A, and cosec A is equal to sec 90 minus A. समझ में आ गए ये formulas? Now we are going to solve problems based on trigonometric ratios of complementary angles. जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इवैल्यूएट tan of 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot of 25 डिग्री. तो अगर आप यहाँ पर दोनों भी एंगल्स देखोगे तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इन पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं. वी नो द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये हमने प्रीवियस सेशंस में देखा है. नाउ द एंगल्स गिवन हियर आर 65 डिग्री एंड 25 डिग्री. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 65 एंड 25 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. 65 डिग्री एंड 25 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 90 डिग्री. करेक्ट? तो हमें यहाँ पर यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पर है tan, यहाँ पर है cot, और ये दोनों एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. तो हमें क्या करना है? दोनों में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है. कैसे चेंज करना है? ध्यान देना है अभी. सो वी कैन राइट tan ऑफ A एज cot ऑफ 90 माइनस A. ये हमने फॉर्मूला देखा है, राइट? We can write tan A as cot 90 minus A. तो यहाँ पर हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या है? 65 डिग्री. So this tan 65 can be written as cot of 90 minus 65 डिग्री. ये समझ में आ रहा है? एंगल A के जगह पर मैं बस सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 65 डिग्री. So tan 65 is cot of 90 minus 65 डिग्री, and this is equal to cot of 90 minus 65 मतलब कितना हो जाएगा? It will be 25 डिग्री. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? tan 65 डिग्री is equal to cot 25 डिग्री. अब हमें क्वेश्चन गिवन क्या है? क्वेश्चन गिवन is tan 65 डिग्री divided by cot of 25 डिग्री. Now we can write this tan 65 degree as cot of 25 degree, correct? And divided by cot of 25 डिग्री as it is. मैंने क्या बोला है? दोनों में से एक को चेंज करना है सिर्फ. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है tan 65 as cot 25. सपोज इसको दे रहा हूँ इक्वेशन 1 and this is coming from equation number 1. tan 65 की जगह पे cot 25 रख दिया. So this is equal to, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा है सिर्फ यहाँ पर? 1. So the value of tan 65 divided by cot 25 is 1. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? The next question given is if sin 3a is equal to cos of a minus 26 degree where 3a is an acute angle, find the value of a.
यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू कॉस ऑफ a minus 26 degree, and what we need to find, we need to find the value of angle a, and it is given that 3a is an acute angle, मतलब angle a भी क्या रहेगा, acute angle ही रहेगा, correct. Next, now if we observe here, यहाँ पर sin है, यहाँ पर cos है, तो अगर मैं दोनों साइड cos में लेकर आ जाऊं तो इन दोनों एंगल्स को मैं कंपेयर कर सकता हूं, बिकॉज बोथ आर अक्यूट एंगल्स, करेक्ट. समझ में आ रहा है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है. अगर मैं दोनों साइड में कॉस लेकर आ जाऊं तो यहाँ पर जो एंगल्स है मैं उनको कंपेयर कर सकता हूं, मतलब दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, बिकॉज बोथ आर अक्यूट एंगल्स. कैसे ला सकते हैं यहाँ पर कॉस, वी नो दैट साइन ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल, सपोज मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूं थीटा, can be written as cos of 90 minus theta, right. अब यहाँ पर थीटा ही क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी a है, तो मैं बस एंगल चेंज करके यहाँ पर लिख रहा हूँ थीटा. वी नो दैट sin थीटा इज cos of 90 minus थीटा. अब यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना है, इट इज 3a, तो थीटा के जगह पर अगर मैं 3a लिख दूं तो दिस बिकम्स इक्वल टू cos of 90 minus 3a, correct. So we can substitute sin 3a as cos of 90 minus 3a, correct. तो इसको लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2. So from 1 and 2, from 1 and 2, इस sin 3 के जगह पर मुझे ये रखना है, तो this will be cos of 90 minus 3a, and this is equal to cos of a minus 26 डिग्री. अब यहां पर भी cos है, यहां पर भी cos है, और ये दोनों एंगल्स कैसे है, these are acute angles, ठीक है. Now we can compare these two angles, means we can write cos of 90 minus a is equal to a minus 26. So this can be simplified. कैसे, एक साइड लेकर आ जाना है कांस्टेंट और दूसरे साइड एंगल a, तो ये माइनस 3a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 26 माइनस 90. सो दिस बिकम्स माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 116. माइनस माइनस प्लस हो गया, सो वी हैव एंगल a इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाय 4. तो एंगल a कितना आ रहा है, इट इज इक्वल टू 29 डिग्री, ठीक है. तो एंगल a की वैल्यू आ गई है 29 डिग्री. यहां पर भी हमने क्या अप्लाई किया है, वी हैव अप्लाइड द कांसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा. उसके बाद थीटा के जगह पर रख दिया है 3a, तो यहां पर भी थीटा के जगह पर 3a आ गया, सो वी हैव sin 3a एज cos 90 माइनस 3a. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज express cot 85 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. हमें यहाँ पर क्या given है, it is given that cot of 85 degree plus cos of 75 degree, and what we need to do, we need to express this in the form of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. ठीक है, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, यहां पर ध्यान से देखना है. अभी अब मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, तो cot of 85 डिग्री कैन बी रिटन एज tan of 90 minus 85 डिग्री. ये समझ में आ रहा है. cot थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, tan of 90 minus थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, tan of 90 minus 85 डिग्री. सिमिलरली यहां पर cos of थीटा है, तो cos थीटा के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, sin 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं. सो दिस कैन बी रिटन एज sin ऑफ 90 माइनस 75 डिग्री. समझ में आ रहा है, मैंने यहां पर डायरेक्टली लिखा है. कैसे यूज किया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज को, cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड यहां पर क्या यूज किया है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ 90 माइनस थीटा. सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ
90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ये? एंड दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस 85 डिग्री इज 5 डिग्री, करेक्ट? 90 माइनस 85 is 5 and this becomes sin of 90 minus 15 is 15 डिग्री, करेक्ट? तो यहां पे हमने क्या किया है, we have expressed this in the form of trigonometric ratios whose angle lies between 0 degree and 45 degree. This 5 degree lies between 0 degree and 45 degree and this 15 degree also lies between 0 degree and 45 degree. समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? We have expressed this in the form of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. ये भी 0 से 45 के बीच में है, ये भी 0 के 45 के बीच में है, और हमने यहां पर क्या अप्लाई किया है, we have again applied the concept of trigonometric ratios of complementary angles. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।